have come to the time of message. I would like to call up Pastor Pradeep Basumatri and Brother Ashish for the translate. You can come and take it on. Praise the Lord, everyone. How are you all doing? आप सभी कैसे हैं? Good. Thank you so much. Now it's time to listen from God's word. One fly is disturbing me. Let us look to God in prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ में शुरुआत करते हैं. Hallelujah, Heavenly Father. Thank you so much for this beautiful morning. And thank you for bringing us together in this manner. Hallelujah, Heavenly Father, to praise, worship, and glorify your holy and mighty name. Lord, Heavenly Father, as I am standing here, Lord, to speak from your word, I need your help. I need your guidance. I need your strength from above, Lord. Come into my heart. Forgive me. Come into my heart. Strengthen me and help me. Use me to speak from your word, Lord. To speak from your word. And also help Brother Ashish to translate accordingly. Oh Heavenly Father, use us both. Fill us with your Holy Spirit. Come into our hearts. And let your presence be here in our midst. Oh Heavenly Father, thank you so much for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. How easy it is to dream or decide what we want to become in the future. कितना आसान ये होता है कि जो सपना और जो निर्णय जो हम अपने भविष्य के लिए लेते हैं कुछ बनने के लिए. But the real struggle happens when we reach the doorway or gateway to pursuing our dreams. लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तब आता है जब हम अपने सपने को अपने लक्ष्य को पूरा करने के द्वार पर पहुंचते हैं. That is after passing 10th or 12th. और ये लगभग हमारे 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद में होता है. Sometimes it depends on our parents. कई बार हमारे माता पिता पर निर्भर करता है. When they cannot afford to support us in fulfilling our dreams. जब वो अयोग्य होते हैं हमें हमारी मदद करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए. And the other thing is, और दूसरी बात ये है, how hard one has to work in his or her studies. कि एक को कितना परिश्रम करना पड़ता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए. And prepare to fulfill their dreams. और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए. So either way, it's not an easy task. Either way, it is not easy. और दोनों ही तरीके से ये आसान नहीं होता. During this journey, और इस यात्रा के दौरान many face a lot of problems. और बहुत सारी विपदाओं का सामना करते हैं. Temporary, चाहे वो कुछ समय की हो, long term, चाहे वो अधिक समय की हो, financial problems, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, backlash, चाहे वो अन्य प्रकार की समस्या क्यों ना हो, mockery, चाहे वो ठट्टा करना क्यों ना हो, failures, चाहे वो असफलताएं क्यों ना हो, etc. और विभिन्न प्रकार की. Like the first one, जैसे पहले की कहा I had a dream कि मेरा एक सपना था to become a doctor. कि मैं एक डॉक्टर बनूं. I was very good at my studies मैं अपने स्टडीज में बहुत अच्छा था. during my school days. अपने स्कूल दिनों के दौरान में Every year I used to secure first division. और प्रत्येक वर्ष में मैं पहला स्थान कक्षा के अंदर लाया करता था. But unfortunately my parents were very poor. लेकिन असौभाग्यवश मेरे माता पिता अयोग्य थे मेरी पढ़ाई के योगदान करने के लिए. The sad part was that when I was in class 9, my dad passed away.
और सबसे दुखद भाग ये है कि जब मैं अपनी कक्षा में था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। That happened after I came back to Karbi Anglong from Dimapur to my hometown. और जब मैं अपने जगह से जब दीमापुर में जब आया ये उसी दौरान हुआ था। I used to take care of my nephew there in Assam. और मैं अपने भतीजे का वहाँ आसाम में उसकी देखभाल किया करता था I was helping him in his studies. और मैं उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करता Also, था। I had to do lots of works living in the village. और मुझे गांव में रहकर बहुत सारे कार्य करने पड़ते थे। Working is good. काम करना अच्छा है, We all need to work. हम सभी को काम करने की जरूरत है, But for students, लेकिन छात्रों के लिए their priority duty is to study. उनकी प्राथमिकता जो कार्य है वो ये पढ़ाई, उनकी पढ़ाई है। But I used to plow the paddy field, और लेकिन मैं खेतों में जाया करता था do cultivation, और वहाँ पर खेत जोतने का काम किया करता Harvesting. था और वहाँ पर कटाई किया करता था threshing of the rice sheaves, और जो मूंजी है उसको बांधा करता था go to the forest for firewood, और लकड़ियां लेने के लिए मैं जंगल में जाया करता था etc., etc. और विभिन्न प्रकार के So I कार्य। hardly got time to study, और मुझे बहुत मुश्किल से समय मिलता था And- कि मैं अपनी स्वयं की पढ़ाई कर and I सकूं। couldn't secure the position that I used to hold in Dimapur. और जो दीमापुर में जो प्रत्येक कक्षा में जो स्थान को मैं लाया करता था वो स्थान को अब मैं लाने के काबिल नहीं रहा था। The second sad part of my life और दूसरा मेरे जीवन का सबसे दुखित भाग ये है was when my mom passed away. जब मेरी माता जी की मृत्यु हुई Just a week before my 10th exam result was out. और मेरे 10वीं के रिजल्ट के आने से एक हफ्ता पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। The third sad part of my life. और ये सबसे दुखद भाग मेरे जीवन का था। These all were during my school days. और ये सब घटना मेरे स्कूल के दौरान हुई थी। When I passed my 10th और जब मैंने अपनी 10वीं क्लास पास and की wanted to go for science streams, और जब मैं 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेने के लिए सोचता था but I was not supported लेकिन मेरे पास किसी प्रकार की मदद by my नहीं थी। brother-in-law और मेरे जो who जो promised me साले हैं, before. जिन्होंने मुझसे पहले वादा किया था, I cried a lot. मैंने बहुत ज्यादा I was रोया, broken. मैं टूटा हुआ था I wasn't really interested at all going for art stream और मैं बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं था कि मैं आर्ट स्ट्रीम को लूं because I wanted to be a doctor. क्योंकि मुझे एक डॉक्टर बनना था। But today, लेकिन आज when I see everything that is happening in my life, जब मैं सारी बातों को जो मेरे जीवन में होती हैं देखता हूँ, I realize that मैं ये महसूस करता हूँ all this thing happens because this is God's plan in my life. और मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी घटना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का मेरे जीवन में एक योजना थी। Today I may not be a doctor हो सकता है आज मैं एक चिकित्सक के रूप में ना हूँ according to the world, संसार के रीति से, but God is preparing me as a spiritual doctor. लेकिन परमेश्वर मुझे एक आत्मिक डॉक्टर के रूप में तैयार कर रहा है। Maybe to be greater than worldly doctor, हो सकता है कि सांसारिक चिकित्सक से बढ़कर परमेश्वर मुझे to बनाए save souls through His power. ताकि उसकी सामर्थ्य से उन आत्माओं को बचाऊं। Worldly doctors can cure diseases, और सांसारिक जो डॉक्टर है वो केवल बीमारियों को ठीक कर but सकते हैं, godly or spiritual doctors can heal the wounds, लेकिन जो आत्मिक और जो ईश्वरीय डॉक्टर होते हैं वो घावों को भरते हैं the broken hearts, और टूटे मन वालों को भरते हैं curing lips, marks or scars. और उनके जख्मों को भरते हैं। Healing doesn't. Healing mark नहीं छोड़ता. Helix doesn't left his marks। Likewise, today we will learn from Joseph's story, और आज इसी रीति से हम आज यूसुफ की कहानी से सीखेंगे। from the book of Genesis, उत्पत्ति की किताब chapter 37 to 50. उसका 37 अध्याय और उसका 50 तक। I have chosen a long chapter, so we'll not be reading, we'll not be going through, but we all know the story of Joseph and we'll share. ये काफी मैंने बड़ा भाग को लिया है, इसमें हम सारे भाग को नहीं देखेंगे, लेकिन आप सब यूसुफ की कहानी से परिचित हैं तो एक छोटे भाग को हम यहाँ पर देखेंगे। Joseph, how he saw dreams और यूसुफ के बारे में कि कैसे वो सपनों को and देखता था shared them with his brothers and parents. और अपने भाई और अपने माता पिता के साथ में उन सपनों को साझा करता था। He was disliked, और उसे लोग नापसंद करते थे, hated, उसे लोग नफरत करते थे thrown in the pit, और उसको गड्ढे में डाल दिया था sold और उसको बेच दिया था and put in the prison in और उसको Egypt. जेल और मिस्र देश में उसको जेल में भी डाल दिया But गया। later, लेकिन बाद में
God's plan in his life was seen fulfilled. लेकिन उसके जीवन में जो परमेश्वर का जो योजना थी वो पूर्ण होती हुई दिखाई दी। We all know what it feels like to have a dream. और हम सब जानते हैं कि सपने का होना कैसा अनुभव को देता है। But again, to have a dream crushed, लेकिन फिर से उस सपने को और भी बड़ी रीति से देखना, crushed, टूटा हुआ सपना. और बिल्कुल टूटा हुआ देखना, A promise given, एक वादा दिया गया, a vision received, एक दर्शन पाया, and then betrayal, और उसके बाद धोखा, disappointment, और उसके बाद में अभिषिक्तता, or circumstances that seem to erase it. और ऐसी परिस्थितियां जो उसे बिल्कुल समाप्त करने के लिए हों। Joseph's story in Genesis 37 to 50 is the story of a teenager. और यूसुफ की कहानी उत्पत्ति 37 से लेकर 50वें अध्याय तक की युवा नौजवान की कहानी है, With two dreams from God, और दो सपने परमेश्वर की ओर से थे, who ends up in a pit, जो कि एक गड्ढे में डाल दिया गया, sold as a slave, और एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया, then forgotten in the prison. और उसके बाद में जेल में भी डाल दिया गया। If betrayal could cancel God's plan, Joseph's story would have ended there itself. और यदि धोखेबाजी ने परमेश्वर की योजना को समाप्त किया होता तो शायद आज यूसुफ की कहानी भी समाप्त हो चुकी होती। But Genesis is not Joseph's story. लेकिन उत्पत्ति में केवल यूसुफ की कहानी ही नहीं है, It's God's story. लेकिन ये परमेश्वर की कहानी है। And God takes what man intends for evil, और लेकिन परमेश्वर वो देखता है जो मनुष्य बुरी योजनाओं के लिए बनाता है, and He turns it for good. और वो उस बुरे को अच्छे में बदल देता है। So today I have entitled my sermon as From Dream to Reality, the Betrayed Becomes a Blessing. और आज का जो मेरे समाचार का जो शीर्षक है वो ये है कि जो सपने से हकीकत तक जिसे धोखा दिया गया वह आशीष बन गया। From dream to reality, the betrayed becomes a blessing. सपने से हकीकत जिसे धोखा दिया गया वह आशीष बन गया। The title clearly says that it is not Joseph's biography. और ये जो शीर्षक है वो साफ साफ कहता है कि यूसुफ की जीवन की कहानी नहीं है, It's the pattern of how God works in our lives. लेकिन एक प्रक्रिया है जैसे कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है। It's the pattern how God worked in Joseph's life. और ये एक प्रक्रिया थी कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में कार्य किया। He gives dream. उसने सपनों को दिया, He allows betrayal उसने धोखेबाजी को होने and दिया, produces blessing. और उसकी क्षमा करके आशीषों को भी दिया। He did in Joseph's life. और उसने यूसुफ के जीवन में किया। Let's walk through our first point आइए हम अपने पहले बिंदु की ओर चलते हैं and see how God does this. और देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ये किया। First point, the dream given by God, not man. सपना मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया। We are talking about Joseph's dream, okay? हम यूसुफ के सपने के बारे में बात कर The रहे हैं। dream given by God, not man. और सपना जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया, ना कि मनुष्य के द्वारा। Genesis 37 verses 5 to 11. उत्पत्ति 37 अध्याय उसका 5 से 7 तक। Joseph saw a dream यूसुफ ने एक सपने को देखा and told his brothers और उसका वर्णन उसने अपने भाइयों से किया that they were binding sheaves of corn और उसने कि वो अपनी भेड़ों को बांध रहे थे out in the field, और वो बाहर मैदान में थे। when suddenly his sheep rose और उसने देखा कि उनमें से एक जो भेड़ है वो उठ खड़ी हुई and stood upright. और सीधा खड़ी हो गई, His brother's sheep gathered around. और उसकी भाई की जो भेड़ें थी वो इर्द गिर्द इकट्ठा हो गई, Gathered around Joseph's sheep यूसुफ की भीड़ के आसपास में इकट्ठा हो गई and bowed down. और उसको दंडवत किया। The dream has got meaning. और इस सपने का एक अर्थ वहां पर था। Joseph would reign and rule over his brothers. और सपने का अर्थ ये था कि यूसुफ खड़ा होगा और अपने भाइयों के ऊपर प्रभुता को करेगा। He has got second dream. और उसका दूसरा सपना मिला, The sun, the moon and the stars bowed down to him.
कि उसने देखा कि सूर्य चंद्रमा और सारे चांद सितारे उसके कदमों में उसको सजदा करते थे। The dream has got another meaning. और उस सपने का भी एक अर्थ निकला। His father, mother, his brothers would come and bow down to the ground before him. और उसके सपने का ये मर्थ था कि उसके माता पिता, उसके सारे भाई जमीन पर उसके सामने झुककर उसको दंडवत करेंगे। God speaks purpose before proof. और परमेश्वर उद्देश्य को उसको करने से पहले बोलता है। Joseph's dreams come at 17. और यूसुफ को वो सपना 17 की लगभग उम्र में आया। With no evidence they will come true. और उसका जिसका कोई प्रमाण ये नहीं था कि वो सच में होंगे या नहीं। He has no position, और उसके पास कोई No स्थान नहीं power. था, कोई अधिकार नहीं थे, no favor. और कोई सहयोग भी नहीं था। Remember, लेकिन याद रखें, God often speaks purpose before he shows proof. अक्सर परमेश्वर उद्देश्य को पहले बोलता है उसके होने से पहले। Like an architect who draws a blueprint before laying a brick. और जैसे एक आर्किटेक्चर एक इमारत को खड़ा करने से पहले उसका मानचित्र बनाता है। The dream is the blueprint. और वो सपना एक उसी मानचित्र के जैसा था। The building is long and messy. और इमारत जो है बहुत बड़ी है और खुबड़ाली है। God's timing is not our timing. परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है। His promise is not dependent on our credentials. और उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो योजना है, वो हमारे ऊपर या हमारे समय के अनुसार पूर्ण नहीं होती। Are you waiting on God's promise with no evidence? क्या परमेश्वर के उद्देश्य के, क्या उसकी योजना का इंतजार कर रहे हैं बिना किसी परिमाण के? Don't miss it because you can't see the steps. Don't miss it because you cannot see the steps. उसको आप खोए ना, क्योंकि आप कदमों को नहीं देख सकते। Don't dismiss it because you can't see the steps. आप उसको उसको खत्म ना करें क्योंकि आप कदमों को नहीं देख सकते। Hold the dream by faith. लेकिन उस विश्वास के द्वारा उस सपने को पकड़े रहें। Remember this also. इसको भी याद रखें। Human jealousy resists divine calling. और मनुष्य की ईर्ष्या परमेश्वर की बुलाहट का विरोध करती है। Human jealousy resists divine calling. मनुष्य की ईर्ष्या परमेश्वर की बुलाहट का विरोध करती है। Joseph's brother hated him because of the dreams. और यूसुफ के भाई सपनों के द्वारा उस सपने के वजह से उससे नफरत किया करते And also थे। because their father loved him more than them. और उसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि उसके पिता उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। The dreams revealed God's order and it exposed their own hearts. और जो सपना है वो परमेश्वर ने उनके जीवनों में एक प्रकाशन के रूप में दिया। Imagine a flashlight in a dark room. और आप कल्पना कीजिए कि एक फ्लैश लाइट एक अंधकार कमरे में जब ज्योति में करती The है, light doesn't create dust. और वो जो ज्योति है वो धूल को उत्पन्न नहीं करती, It reveals it. लेकिन वो उसको दिखाती है। God's calling often reveals the jealousy and pride in others and in us. और अक्सर परमेश्वर की योजना दूसरे के हृदय की जलन और ईर्ष्या को दिखाती है। Opposition doesn't mean you heard them wrong. विपक्ष का ये मतलब नहीं कि आपने उसको गलत सुना है। When people resist your calling, जब लोग आपकी पुकार को नकार देते हैं, don't argue with them. आप उनके साथ बहस ना करें। Let God handle the defense. और होने पाए कि परमेश्वर आपका पक्ष ले। Many of us try to defend और ourselves. कई बार हम अपना पक्ष को रखने का प्रयास करते हैं। I have seen a Christian family when their son was murdered, they said, "We need justice. We need revenge." और मैंने एक मसीह परिवार को देखा जिनके बेटे की हत्या कर दी गई, तो उन्होंने ऐसा कहा कि हमें बदला चाहिए, हमें न्याय चाहिए। The people will definitely support them. और लोगों ने भी उनको सहयोग किया। And we cannot teach them at that time. और हम उनको उस समय पर सिखा नहीं But सकते। what Jesus said लेकिन यीशु क्या कहते हैं on the cross, क्रूस पर, Father, forgive them, पिता उनको क्षमा कर, for they do not know क्योंकि ये नहीं जानते what they are doing. कि ये क्या करते हैं। The son of the reverend in Manipur said, और मणिपुर के एक रेवरेंड के जो बेटे हैं वो कहते हैं, the recently who was murdered, और जिनकी अभी हाल ही में हत्या कर दी he गई was shot dead. और उसको गोली मार दी गई, He said, उन्होंने कहा in the name of my Lord and my Savior, कि अपने- Jesus Christ, अपने उद्धारकर्ता और अपने ईश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, I have forgiven the perpetrators.
और मैंने उन खूनियों को, उन अपराधियों को क्षमा कर दिया, who have taken away my father और जिन्होंने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया and his calling. और उनकी पुकार को छीन लिया। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से I have forgiven them. मैंने उनको क्षमा कर दिया। How Min Lun Sit Lu. His name is How Min Lun Sit Lu. It's difficult. It's okay. He's the son of the Reverend in Manipur. और वो मणिपुर में एक रेवरेंड के बेटे हैं Means recently who was shot dead. और जिनके पिता की अभी रिसेंटली हत्या कर दी Do गई। we have the heart like them? क्या हमारे पास ऐसा हृदय है? Can we forgive our murderers? क्या हम अपने अपराधियों के, अपने खूनियों को क्षमा कर सकते हैं? I think we need to learn from them. हमें जरूरत है शायद उनसे सीखने की। Now let's move to the second point. आइए हम दूसरे बिंदु की ओर जाते हैं। Maybe I'll take short time today. Yes, maybe I'll take short time. और मैं शायद आज छोटा समय ही लूंगा, But we have meaningful points. लेकिन हमारे पास बहुत अच्छे Brother बिंदु is हैं। also translating very fast. So the second point says the betrayal doesn't cancel the plan. दूसरा बिंदु है विश्वासघात योजना को रद्द नहीं करता। The betrayal doesn't cancel the plan. विश्वासघात योजना को रद्द नहीं करता। Genesis chapter 37 verses 23 to 28 and 45 verses 5 to 8. उत्पत्ति 37 उसका 23 से 28 और उत्पत्ति 45 उसका 5 से 8। One day Joseph's father Jacob sent him और एक दिन to go and see his brothers. याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को अपने भाइयों को देखने के लिए बाहर भेजा If all is well with them और वो सब उनके साथ ही थे and with the flocks. और मेढ़ों के साथ में वो लोग थे And bring word to him. और उनको अपने शब्द लेकर जाने के लिए भेजा। But when Joseph came to his brothers, लेकिन जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया they stripped him. और उन्होंने उसको डांटा They stripped him of his robe. और उसकी रस्सी पकड़कर उसको फाड़ दिया, उसके कपड़ों को फाड़ दिया The ornate robe he was wearing, और बड़े अच्छे कपड़े उसने पहने हुए थे that his father gave him. जो कि उसके पिता के द्वारा उसको दिए गए थे And they took him और उसको लिया and threw him in the cistern. और उसको गड्ढे में डाल दिया The cistern was empty और वो गड्ढा खाली था and there was no water in it. और उसके अंदर कोई पानी भी नहीं था। Then Judah realized, his elder brother, और जो जूडारिया है जो उसका बड़ा भाई था that they would gain nothing by killing him और उसने ऐसे सोचा कि ये उसको मार ना दें इसलिए and by covering his blood. और उसको इस कि ये मर गया इसलिए उसके कपड़ों को हम खून में Because सान देते हैं he is their own brother, क्योंकि वो उसका स्वयं का भाई था, their own blood. उनका खून स्वयं का खून था। When they saw the caravan of Ishmaelites, the Midianite merchants लोग आ रहे थे, और जब उन्होंने व्यापारियों को उस मार्ग से आते हुए देखा coming from Gilead and going towards Egypt, कि दूसरे मार्ग से आते हुए मिस्र की ओर जा रहे थे they pulled Joseph out of the cistern और उस गड्ढे से उन्होंने फिर यूसुफ को बाहर निकाला and sold him to them और उनको बेच दिया for only 20 shekels of silver. और लगभग 22 चांदी के सिक्कों में। Human sin is real, और मनुष्य का अपराध जो है वो सच्चा है but not sovereign. लेकिन छिप नहीं सकता, Human भाप नहीं sin सकता। is real, but not sovereign. मनुष्य का पाप वास्तविक है परंतु सर्वोच्च नहीं। The brothers strip, throw, and sell Joseph. और उसके भाइयों ने उसको मारा पीटा और उसको बेच डाला Their sin is real, ugly, and intentional. और उनका जो पाप था वो वास्तविक था और जानबूझकर किया गया Yet था, God is still sovereign over it. लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर सर्वोच्च था। A chess master, can take a player's bad move and still win the game. और एक जो मास्टर होता है वो खेल को एक बेकार इस परिस्थिति से लाकर एक जिताने वाले परिस्थिति तक ले जा सकता है। God never makes a bad move, but He can redeem ours. परमेश्वर कभी भी एक गलत कदम को नहीं लेता लेकिन वो हमारा उद्धार कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। God doesn't cause evil, परमेश्वर बुरा नहीं करता,
but he governs it. लेकिन वो उसको नाश करता है। No pit is too deep for God's plan. और परमेश्वर की योजना के लिए कोई भी गड्ढा उतना गहरा नहीं है। If you have been betrayed today, यदि आज आप धोखा दिए गए हों, don't assume that God has abandoned you. ऐसा ना समझे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। Ask God, परमेश्वर से पूछें what is He doing through this? कि वो उसके द्वारा क्या करेगा, God will definitely help you understand. और परमेश्वर सच में आपकी मदद करेगा समझने के लिए। Pain becomes our preparation. और पीड़ा तैयारी बन जाती है। Pain becomes our preparation. पीड़ा तैयारी बन जाती है। Joseph first time revealing himself to his brother when they came to Egypt. और यूसुफ पहली बार अपने भाइयों को उनके सामने अपने आप को प्रकाशित करता है जब वो मिस्र देश में आए Joseph थे। already become a governor there. और वहां पर वो एक अधिकारी के रूप में बड़े पद पर वो वहां पर हो चुका था। He told his brothers not to be distressed and angry because of selling him. और उसने अपने भाइयों से कहा कि वो चिंता ना करें, नाराज ना हो, क्योंकि उन्होंने उसको बेच दिया था। Joseph told his brothers, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा they sold him, कि तुमने मुझे बेच दिया, but God sent him ahead of them to prepare life, a preserved life. लेकिन परमेश्वर ने मुझे तुमसे आगे भेजा ताकि मैं जीवनों को संरक्षित कर सकूं। The pit, और वो गड्ढा, Potiphar's house, और वो पोतीफर का घर, the prison, जेल, all of it और वो सब, trained Joseph for the palace. और उन सब बातों ने यूसुफ को प्रशिक्षित किया ताकि वो उस जगह पर, उस राजमहल तक जा सके। He was once a shepherd boy. और वो एक समय पर एक चरवाहे का बेटा था, Now he is being prepared for the palace. और अब वो प्रशिक्षित तैयार हो गया है ताकि वो उस जगह पर, उस राजमहल तक पहुंच सके। Joseph's character was cut, और यूसुफ का चरित्र वहां पर काट दिया गया था, shaped, और उसको उसको ढांचा दिया गया था, polished in the hidden places. और उसको गुप्त स्थानों में उसको चमकाया गया था। God's preparation is often painful परमेश्वर का योजना अक्सर दुखदाई होती है, because He is forming you for purpose. क्योंकि वो आपको निर्माण कर रहा है, आपका ढांचा आपको निर्माण कर रहा है अपनी योजना के लिए, अच्छे के लिए, Not just comfort. केवल आराम के लिए नहीं। Why do a student need to study so hard to secure good marks? क्यों छात्रों को ठीक कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है अच्छे नंबर लाने के लिए। And then athletics, struggling so hard to get through, to win the game. लेकिन उस खेल को जीतने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम उनको करना पड़ता है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। God is using it to build character that can carry the blessing. परमेश्वर ऐसा चरित्र निर्माण कर रहा था जो कि आशीषों को ला सके। If you are going through problems, यदि आप समस्याओं से होकर चल रहे हैं, if you are going through persecutions, यदि आप सताओं में होकर चल रहे हैं, if people mock you, यदि पीपल आपकी निंदा करते हैं, if people insult you, यदि पीपल आपको निंदा Beat करते you, हैं, आपको मारते हैं torture you, और आपको प्रताड़ित करते हैं, remember, आप याद रखें, if you were worthy, यदि आप सांसारिक होते, if you are faithful, यदि आप विश्वास योग्य हैं, God is preparing you परमेश्वर आपको तैयार कर for रहा His है plan. अपनी योजना के लिए। Don't be sad. इसलिए निराश ना हो। Let us move to our third point, or yes, let us move to our third and last point. आइए हम अपने तीसरे और आखिरी बिंदु की ओर जाते हैं। The betrayed becomes a blessing to others. जिसे धोखा दिया गया वह दूसरों के लिए आशीष बन जाता The है। betrayed becomes a blessing to others. धोखा दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। Genesis chapter 50 verses 20 and 21. और उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और उसके 20 और 21 आयत। After Joseph's father died, और यूसुफ के पिता की मृत्यु के बाद his brothers were afraid of Joseph, और उसके भाई यूसुफ से डरने लगे, thinking that he might hold a grudge against them वो ऐसा सोचने लगे कि शायद वो हमारे खिलाफ कोई दोष ना लगाए या हमको प्रताड़ित ना करे, and pay them back for all the evil and bad things that they had done to him. और जितनी बुराइयां उन्होंने उसके साथ की हो सकता है उसका बदला वो हमसे ना ले। But knowing it, लेकिन उसको जानना, Joseph wept
और जो यूसुफ की पत्नी नहीं, जोसेफ wept, रोने लगा. और उसको ये सब जानने के बाद में यूसुफ रोने लगा. Joseph told them not to be afraid. और यूसुफ ने उनसे कहा कि वो चिंता ना करें, डरे ना. He said, am I in the place of God? और उसने कहा कि क्या तुम सच में परमेश्वर के स्थान में हो, Because he cannot take revenge. क्योंकि वो बदला नहीं ले सकता. Revenge should be taken by God himself. और होने पाए कि बदला परमेश्वर के द्वारा ही लिया जाए. He told them, उन्होंने उससे कहा you intended to harm me, कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना की थी, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. लेकिन परमेश्वर के पास ये योजना थी कि उस गड्ढे को जो कि अब पूर्ण होता दिखा रहा है उसको लिए तैयार करने की. He also promised to provide them और उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, and their children, उनके बच्चों का ध्यान रखूंगा. and he reassured them और उसने फिर से उन्हें नियोजित किया and spoke kindly to them. और बड़ी विनम्रता के साथ उनसे बातचीत की. Position with purpose. पद एक योजना के साथ में, Position with purpose. पद योजना के साथ में. We know Joseph rose to second in command of Egypt. और हम जानते हैं कि यूसुफ राजा के बाद में दूसरा बड़ी अधिकार रखने वाला वहाँ व्यक्ति था. But he didn't use his power for revenge. लेकिन उसने अपने अधिकार का बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया. He was hated by his brothers. वो अपने भाइयों के द्वारा ईर्ष्या किया गया. They sold him to Egypt. उन्होंने उसको इजिप्ट मिस्र देश में बेच दिया. But God lifted him up there. लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से उठाया. Though he has got lots of power, यद्यपि उसने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, he did not use them to take revenge. लेकिन फिर भी उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल उनसे बदला लेने के लिए नहीं He किया. used it for provision. लेकिन उसने उन्हें देने के लिए उसका इस्तेमाल किया. A dam holds water not for itself. Dam. और उद्देश्य एक जो कुआं है वो पानी स्वयं के लिए इकट्ठा नहीं करता, स्वयं के लिए नहीं रखता, But to distribute it to the fields downstream. लेकिन खेतों जो कि नीचे है उनको देने के लिए. Joseph's position was a reservoir for God's mercy. और यूसुफ की जो पद था वो एक रिजर्व वाटर के जैसा था जो कि दूसरों के लिए अनुग्रह के लिए होना था. God elevates us to make us comfortable. और परमेश्वर हमें उठाता है ताकि हम आरामदायक हो जाएं. Sorry, not to make us comfortable, हमें आरामदायक बनाने के लिए नहीं, but to make us channel of blessing. लेकिन हमें एक आशीषों का एक जरिया बनाने के To लिए, make us channels of blessing. ताकि हमें आशीषों का श्रोता बनाने के लिए. If God promotes you, यदि परमेश्वर आपको उठाता है, check your motive. अपने उद्देश्य को देखें. Never forget to check whether you are becoming a blessing or burden to others. कभी उस अपने उद्देश्य को ना बने ताकि आप चाहे आप दूसरों के लिए एक आशीष बने, चाहे दूसरों के लिए बोझ बने. Will you use it to serve, forgive and restore? और क्या आप इसको इस्तेमाल करेंगे दूसरों को उठाने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए? Reconciliation flows from redemption. और उद्देश्य के साथ मेल मिलाप छुटकारे से उत्पन्न होता है. Means restoring a broken relationship by setting free with a price. और एक टूटे हुए रिश्ते को उस आजाद इच्छा के साथ में दोबारा जोड़ना. He said, do not be afraid. उसने कहा कि डरो मत. Am I in the place of God? क्या मैं सच में परमेश्वर की जगह पर हूं? You intended to kill me. तुमने मुझे मारने की योजना You बनाई, intended to harm me. तुमने मुझे हानि पहुंचाने की योजना की, But God intended it for good. लेकिन परमेश्वर ने उसको भी एक अच्छे के लिए इस्तेमाल किया. Joseph saw the big picture and extended grace. और यूसुफ ने एक चित्रण को देखा और उसको बड़ा भी किया. A surgeon cuts to heal. और एक सर्जन एक जख्म को काटता है उसे ठीक करने के लिए. Joseph's forgiveness was a deep cut that healed the family. और यूसुफ की वो क्षमा एक ऐसे एक कट के जैसे थी जिसने पूरे परिवार के घावों को भर दिया था. You can't control whether you become like them. आप फिर भी नियंत्रण नहीं कर सकते यदि आप उनके जैसे बने भी. Now, who do you need to forgive today? आज आपको किसको क्षमा करने की जरूरत है So that God's blessing can flow through you. ताकि परमेश्वर की आशीष से आपके द्वारा उमड़ सकें. Is there anyone?
क्या यहाँ पर कोई है? Make up your mind अपने विचारों को बनाएं to forgive them. उनको क्षमा करने के If लिए। you forgive, यदि आप क्षमा करते हैं, God will forgive you. परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। If you forgive, यदि आप क्षमा करते हैं, God will listen to our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। God will listen to our prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। If we don't forgive and just keep on praying and fasting, यदि हम क्षमा नहीं करते लेकिन निरंतर प्रार्थना और उपवास करते हैं, God will say, I'm sorry. परमेश्वर कहेगा मुझे माफ करना, मैं नहीं कर सकता। So, we have seen Joseph's journey went from dream to pit. और हमने यूसुफ की इस सपने की और हमने यूसुफ की यात्रा को देखा, सपने से लेकर और उसको पूरा होने तक, नहीं, pit. उसको घट्टे तक, To prison जेल से and to palace. राजमहल तक। But the point was never the palace. Palace. राजा का महल। लेकिन वो जो but the point was never the palace. लेकिन जो उद्देश्य था, लेकिन जो बिंदु था वो कभी राजा का महल नहीं था। The point was preservation, और जो बिंदु था वो था संरक्षण provision, और उसको प्रदान करना reconciliation. और मेल मिलाप। Therefore, from today's sermon, इसलिए आज के इस प्रचार से from dream to reality, सपने से सच्चाई तक, the betrayed becomes a blessing. और जो धोखा है वो एक आशीष बन जाता है। We have learned. हमने सीखा है। What have we learned? हमने क्या सीखा है? God does not waste our dream. परमेश्वर कभी हमारे सपनों को व्यर्थ नहीं जाने Our देता। betrayal हमारे धोखे को or our pain. और हमारे पीड़ा को He used them. वो इसका इस्तेमाल करता है। He uses all of it to make us a blessing. उन सभी का इस्तेमाल करता है हमारे लिए एक आशीष बनाने के The लिए। dream is given by God. सपने परमेश्वर के द्वारा दिया The गया, betrayal doesn't cancel the plan. और जो धोखा है उसने भी योजना को वो कैंसिल The नहीं कर पाया, betrayed becomes a blessing. और धोखा ही आशीष बन गया। And that's what we see in Joseph's life. और अब हम जो यूसुफ की कहानी में देखते हैं, उसके जीवन में देखते हैं, So if you are in the pit today, यदि आज आप उस गड्ढे के अंदर हैं, trust the dream. आप उस सपने पर भरोसा रखें। If you are in the prison, यदि आप जेल में हैं, trust the process. आप उस प्रक्रिया पर भरोसा If रखें। you are in the palace, यदि आप उस राजमहल में हैं, trust the purpose. आप उस उद्देश्य पर विश्वास करें, Because भरोसा करें। God who gave Joseph the dream क्योंकि परमेश्वर जिसने यूसुफ को स्वप्न दिया, is the same God who is writing your story. वही सेम परमेश्वर है, वही समान परमेश्वर Who जो is आपकी कहानी writing लिख रहा है, my story? जो मेरी कहानी लिख रहा है, Who is writing our story? जो हमारी कहानी लिख रहा है। Can we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? I would like to pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Heavenly Father, Lord God, thank you so much, Lord Heavenly Father, for the story of Joseph. And thank you for blessing him, using him, lifting him from shepherd to the highest position. Oh, Heavenly Father, Lord. Heavenly Father, thank you for giving us dreams, calling us, and the promises that come from you alone, not from man. When jealousy arises and betrayal cuts deep, remind us that human sin is real, but you are still sovereign, Lord. Heavenly Father, what others meant for harm, you intend for good. Turn our pain into preparation, our pit into a pathway, our prison into a platform. Hallelujah. Lord, like Jesus, Heavenly Father, like Joseph, teach us to see the big picture. Give us hearts that extend grace when we have every reason for revenge. Let our position be filled with purpose, and let reconciliation flow from the redemption, Heavenly Father. Hallelujah. You bought us on the cross, make us blessings to others. Hallelujah. Where there is broken family, broken trust, broken dreams, use our story to save many lives. We surrender our hearts to you, Heavenly Father. Oh, hallelujah, Father. And ask that you bring it from dream to reality for your glory,
Oh, hallelujah. In Jesus' mighty and precious name we pray. Thank you so much for hearing our prayer. In Jesus' name we pray, Christ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Thank you, Pastor Pradeep, for the wonderful message and testimony you have shared with us. And Brother Ashish for interpreting the message. May God bless you.